السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ الحمد للہ والصلاة الحمد للہ والصلاة لأہلہا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، ہماری نظر میں عام ہوتے ہیں، ہماری نظر میں بے حیثیت ہوتے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ ان کا مقام اور وقار عظمت نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت ہے۔ ہماری نظر میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے، اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہاتھ اٹھائیں، اللہ ہاتھ ان کے اٹھنے منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کر دے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے درخواست کریں صرف اشاروں میں، اللہ ان کے اشارے پورے کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ خاص مقام ہوتا ہے، خاص مرتبہ ہوتا ہے، خاص تعارف اور خاص تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، ہماری نظر میں ان کی حیثیت کوئی عام ہے۔ لوگ حضرت کو ہاتھ ملانے کے لیے دوڑیں گے، دعا کے لیے عرض کریں گے، حضرت کے جوتے اٹھائیں گے، حضرت یہ، لیکن وہ لوگ ہیں جو حضرت سے بڑے حضرت ہیں، چھپے ہوئے خزانے ہیں، کنز مخفی ہیں، در مکنون ہیں۔ وہ موتی ہیں جو سیپ کے اندر بند ہیں، در مکنون، در کہتے ہیں موتی کو، سیپ کے اندر بند ہیں۔ جو سیپ سے نکلے ہیں وہ تو سب نے دیکھے ہیں، وہ بند ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بندہ جب اجتماعی طور پہ کسی جگہ قیام کرتا ہے تو اسے وہ وقت کے باکمال ولی مل جاتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں مقام ہے، وہ باکمال ہستیاں مل جاتی ہیں، وہ باکمال درویش مل جاتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ اللہ کے ہاں جن کا مرتبہ ہے وہ مل جاتے ہیں، جن کا اللہ کے ہاں کوئی منصب ہے وہ مل جاتے ہیں۔ کہنے لگا تو فلاں جگہ سویا ہوا تھا نا، تو جس کے قدموں میں سویا ہوا تھا وہ ہمارا دوست تھا، ہم نے اس پہ رحمت اپنی برسائی تھی، تو ان کے قدموں کی وجہ سے اس کی رحمت میں تو بھی نہا گیا تھا، اور وہ بھی بخشا ہوا تھا، تو بھی اس کی وجہ سے بخشا گیا، اس کے قدموں کی وجہ سے۔ اس محفل میں، اس مجلس میں، اس نشست میں، آج کے اس تسبیح خانے میں کون صاحب مقام ہے؟ کون صاحب مرتبہ ہے؟ کون صاحب منصب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون ایسا ہے جس کی اللہ سے بنی ہوئی ہے؟ جو اللہ کو قسم دے دے اللہ قسم پوری کر دے، جو اللہ سے عہد کر دے اللہ عہد پورا کر دے۔ آقا نے بھیجا کہ جا کے پینے پلانے کھانے پینے کا سامان لیا غلام کو۔ مالک بن دینار بازار میں بیٹھے تھے، ایک مقروض، ایک غریب، ایک تہی دست مفلس شخص تھا، کہنے لگا میری مدد فرما دے۔ فرمانے لگے نہیں ہے، ٹھہر جا، ابھی کچھ اللہ کر دے گا۔ آواز لگانے لگے، ہے کوئی بندہ جو اس غریب کی مدد کر دے، میں اس کے لیے دعا کر دوں؟ اس کے پاس 4 درہم تھے، اس نے کہا 4 درہم میں اس درویش کو دے دوں، اور موج ہے فقیر کی، آج فقیر موجوں پہ ہے، اس کی دعاؤں میں کمال اور تاثیر ہے، کام ہو جائے گا۔ مالک کی منت، ورنہ ڈانٹ اور سزا ہی سہ لوں گا۔ 4 درہم دے دیے، انہوں نے 4 درہم ضرورت مند کو دے دیے، ضرورت مند کا گھر پورا ہو گیا۔ پوچھا کیا مانگتا ہے؟ کہا اس کا بدل مل جائے، مالک کو توبہ نصیب ہو جائے۔
मुझे आजादी मिल जाए और सबकी बख्शिश हो जाए। 4 दुआएं। इसका बदल मिले, जो 4 दिरहम दिए इसका बदल मिले। 1, मेरे मालिक को तौबा नसीब हो जाए। 2, मुझे गुलामी से आजादी मिल जाए। 3, और बख्शिश का सामान हो जाए, अल्लाह बख्श दे। उन्होंने 4 दुआएं मांगी। अल्लाह, इसने मुझे 4 दिरहम दिए हैं और तो इसकी 4 दुआएं मैं इसके हक में मांगता हूं, तो 4 दुआएं इसकी कबूल फरमा ले। इसने मुझे 4 दिरहम दिए हैं, 4 दुआएं कबूल कर ले। दुआ की, दुआ मंगवाई, खाली हाथ वापस आ गया। मालिक ने पूछा, कुछ लाया नहीं? कहा, आज वाकया हो गया। क्या? एक दरवेश बैठे थे, जरूरतमंद की जरूरत थी और कहते थे, है कोई जो इसकी जरूरत पूरी करे और मैं उसके लिए दुआ कर दूं। तो मैं उन जरूरतमंद की जरूरत पूरी करवाई और उनके लिए दुआ करा दी। ऊपर से मामला तो हो गया था कबूल, वो तो कबूल हो चुका था। तो मालिक कहने लगा, क्या दुआ कराई थी? कहा कि मुझे इन 4 दिरहम का बदला मिल जाए। कहा, ये 400 दिरहम तेरे हैं, जा। और दूसरी दुआ क्या कराई थी? कहा, मेरे मालिक को तौबा नसीब हो जाए। कहा, तेरे सामने मैंने तौबा की, सब चीजें तोड़ दी और तौबा। और कहा कि तीसरी क्या मंगाई? बोलो। मुझे आजादी मिल जाए। कहा, जा तू आजाद है। और कहा, चौथी दुआ क्या मंगाई? कहा, अल्लाह पाक माफ कर दे। कहा, मेरे बस में नहीं है, ये मैं जहां तक है वो मेरे रब का मामला है। रात को ख्वाब में देखा कि मेरे बंदे 3 काम तेरे करने के थे, वो तूने कर दिए हैं, चौथा काम हमने कर दिया। हमने तेरी बख्शिश की, तेरे गुलाम की बख्शिश की, मालिक बिन दिनार की बख्शिश की, उस महफिल में दुआ में आमीन कहने वाले सबको बख्श दिया। ये वो महफिलें हैं जहां आज आप बैठे हैं, ये वो महफिलें हैं जहां आपके कदम उठे हैं, ये वो महफिलें हैं जिनकी कदरदानी आपके दिलों के अंदर है और अजमत दिलों के अंदर है। ये वो महफिलें हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं, जहां फरियादें पूरी होती हैं, जहां गैबी निजाम चलता है। गैबी निजाम चलता है, गैबी निजाम चलता है। जो जितने सच्चे जज्बे के साथ महफिल में आता है, उतने सच्ची दुनिया और सच्चा निजाम पाके जाता है। जो जितने सच्चे जज्बे के साथ आता है। एक बंदा था, अब्दुल्ला उसका नाम था। लोगों से कहता था, लोगों कोई दर बताओ, कोई घर बताओ, कोई जगह बताओ जहां मैं अल्लाह अल्लाह सीख लूं, अल्लाह अल्लाह सीख लूं। किसी ने कहा कि एक दरवेश है, बहुत दूर कहीं, वहां रहते हैं, वहां जाओ, वो अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं। वहां सफर करते 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 पहुंचा। जब करीब पहुंचा, पता चला कि उनका तो विसाल हो गया। जी भर के रोया, ख्याल आया वापस चला जाऊं। कहा, चलो उनके तस्बीह खाने आस्ताने में उनका कोई खादिम खलीफा, उनका कोई बेटा, चलो वो तो मिल लूं। पता चला कि हजरत का कोई खलीफा नहीं, एक बेटा है, वो हजरत की जिंदगी पे नहीं आया, उसकी जिंदगी कुछ और है, खाने पिलाने की जिंदगी है, लिहाजा कोई हजरत का नहीं। जी में आया कि कोई बेटे को तो मिल लूं, चलो इतना दूर का सफर करके आया हूं को मिल तो लूं। अब ये जज्बा सच्चा लेके चला था, और सच्चे जज्बे में हमेशा नजरों का अंदाज और होता है, अंदाज देखने का होता है। वही आंखें थी अबू जहल की, उन्होंने हमेशा एतराज देखा, उन्हीं आंखों ने हमेशा शक देखा, उन्हीं आंखों ने हमेशा वसवसा देखा, उन्हीं आंखों ने हमेशा बदगुमानी देखी। और वही आंखें बिलाल की थी, उन्होंने हमेशा इश्क देखा, सच देखा, खुलूस देखा, रहमत देखी। आंखें तो वही थी, आंखें तो वही थी। अबू जहल की आंखों ने हमेशा बदगुमानियां, शक, वसवसे और एतराज, और बिलाल की आंखों ने हमेशा शक नहीं यकीन देखा, इश्क देखा, सच्चाई देखी। सारी दुनिया अबू जहल को कहती है नहीं तू झूठा है, और बिलाल को कहते हैं तू सच्चा है, और इतना झूठा बना के अबू जहल गाली बन गया। इस दरवेश का यकीन सच्चा था, सच्चे जज्बे को लेके गया था। मैं ये वाकया कई बार सुना चुका हूं, हर दफा दिल मेरा धड़कता है कि क्या मैं भी ऐसा हूं। तो बाबा जी के पास गया ना, उनके बेटे के पास, आगे दरवाजे के बोरिया पड़ा हुआ था,
उन्होंने अपने गुलाम को भेजा था खादिम को बाजार से पैसे देके कि कुछ खाने पीने पिलाने की चीजें ले आ। उसको देर हो गई थी, इसके कदमों की आहट सुनी तो अपने गुलाम को समझा कि वो आ गया। इसका नाम भी अब्दुल्ला, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। तो इन्होंने कहा अब्दुल्ला तूने देर कर दी। इसके अंदर हाय लगी, कहने लगी वो कहते हैं कि हजरत का बेटा तो 2 नंबर है। हजरत के बेटे ने फरमाया तूने देर कर दी, अब्बा जी का विसाल हो गया। उसने तो अपने खादिम को कहा था तूने देर कर दी, उसने तो अपने खादिम को कहा था तूने देर कर दी। इसका चूंकि जज्बा सच्चा था, इसका मन सच्चा था, इसका अंदर सच्चा था, यह हर चीज को सच्चे जज्बों से ले रहा है और हर चीज को सच्चे अंदाज से ले रहा है। इसका यकीन हो गया, कहने लगा हजरत आपने तो पहचान लिया, लोग तो आपके बारे में कुछ और कहते हैं, वाकई मैंने देर कर दी, आपके वालिद मोहतरम हजरत का इंतकाल हो गया, मैं तो अल्लाह अल्लाह सीखने आया हूं, मुझे अल्लाह अल्लाह सिखा दे। अब ये अल्लाह अल्लाह इसके पास खुद था ही नहीं, वो क्या सिखाता। वालिद साहब थे तो दुनिया आती थी, हदिये माल तोहफे खिदमतें बहारें थी। वालिद साहब गए तो सब कुछ चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक बाग था वो खुशकी में सड़ रहा था, उसकी खिदमत करने वाले गए तो इन्होंने कहा कि बाबा हमारा बाग है, उसको पानी दे, उसकी खिदमत कर, और यहां अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए वक्त चाहिए, वक्त। कहने लगा हजरत आप वक्त की बात कर रहे हैं, मैं तो जिंदगी लाया हूं, सारी जिंदगी उसके नाम पे लग जाए, सारी जिंदगी उसके नाम पे लग जाए तो भी सौदा सस्ता है। उन्होंने कहा जा 1 साल जाके बाग को पानी दे। 1 साल बाग को पानी दिया, रूखी सूखी जो मिल जाती थी खा लेता था। साल गिन गिन के एक दिन गुजारा, साल के बाद वापस लौटा, पूरे साल हो गया कि बाबा जी हजरत साल पूरा हो गया। अच्छा साल हो गया, अब तो अल्लाह अल्लाह सिखा दें। अब इसके पास कहां अल्लाह अल्लाह, कहते हैं कि अगर कुछ 2-4 बातें इसको बताई दी तो ये तो भाग जाएगा, फिर बाग को कौन देखेगा। उसने कहा बाबा तो अभी कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ, ये सौदे अनदेखे हैं, जा खिदमत कर, जब पक्का होगा हम अल्लाह अल्लाह सिखा देंगे। उसने कहा ठीक है, हाँ मेरे दिल ने अल्लाह हु कीता, मैं रख तवक्कल धू कीता, तवक्कल। उन्हें कहा सौदे, उन्हें कहा ठीक है। अब फिर जाके अल्लाह अल्लाह भी करता था, जिक्र भी करता था, बाग की खिदमत भी करता था, और मुजाहिदे कुर्बानियां फक्र फाके, रोटी मिली ना मिली, खाना मिला ना मिला, लगा रहा। इसके सच्चे जज्बे की अल्लाह की बारगाह में कीमत कीमत कीमत, और इसके सच्चे जज्बे की वजह से अल्लाह ने इसको अपनी दोस्ती दे दी, इसको विलायत दे दी। इसके सच्चे जज्बे की वजह से अल्लाह ने इसको दोस्ती दे दी और अपनी विलायत दे दी, इसके सच्चे जज्बे की वजह से। हाँ हाँ, अल्लाह ने इसको अपनी दोस्ती विलायत दे दी। अब जो मुराकबा किया, अपना मकाम देखा, फौरन कहने लगा मेरे मुर्शिद का फैज है, मुझे विलायत मिल गई है। फिर नजर वहां गई मुर्शिद पे, क्योंकि ये खुद सच्चा था। कहने लगा अपने मुर्शिद का मकाम तो देखो। अब जो मुराकबा किया, मुर्शिद का मकाम मिला ही ना, होता तो मिलता। कहने लगा ना मैं देख नहीं सकता, मेरा मुर्शिद बहुत ऊंचा है, मैं उसके मकाम तक पहुंच नहीं सकता, मेरी हैसियत नहीं है। फिर गुमान अच्छा किया, अब दौड़ा दौड़ा मुर्शिद की खिदमत में आया। हजरत आपकी बरकत से अल्लाह ने अपना नूरे विलायत अता फरमाया है और अल्लाह ने अपने दोस्तों में शामिल कर लिया है। बस इसकी बात कहनी थी, उसके दिल पे चोट लगी। हदीस में आता है इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं, चिराग से चिराग चलता है, इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं। और हदीस का अगला लफ्ज है अल्लाह उनके जरिए से बड़े फितने दूर कर देते हैं। बस इसकी जो चोट लगी, कहने लगा मैं तो 2 नंबर था, मैं तो खिदमत के बहाने तुझे रोका हुआ था, तुझे अल्लाह ने अपनी विलायत का नूर दे, अब मेरे लिए भी दुआ कर, अल्लाह ये नूर विलायत मुझे भी दे दे। अब जो इस दीवाने अब्दुल्ला ने दुआ मांगी ना, फिर जो देखा मुर्शिद को भी अपने मकाम पे पाया। इस मजमे में कौन अब्दुल्ला है, कितने अब्दुल्ला हैं, मेरी नजर नहीं देख सकती, मेरे पास वो पैमाने नहीं हैं,
मेरे पास वो थर्मामीटर नहीं है, मेरे पास वो नजर नहीं है, दिल की, चेहरे की नहीं, दिल की नजर, जो कश्फ की नजर होती है वो नहीं है। इसमें कितने अब्दुल्ला हैं? इखलास वाले कितने अब्दुल्ला हैं? लिल्लाहियत वाले कितने अब्दुल्ला हैं? जिनका तन मन का मन मन बोलता है, जिनका रुआ रुआ बोलता है कि मैं अल्लाह का नाम सीखने आया हूं, मैं अल्लाह का नाम सीखने आया हूं, मैं अल्लाह का नाम सीखने आया हूं। इसमें कितने अब्दुल्ला होंगे? इसमें कितने अब्दुल्ला होंगे जिनके अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक, जिनका अल्लाह के साथ क्या तारुफ, जिनके अल्लाह के साथ क्या निस्बत है? कितने अब्दुल्ला होंगे? मेरी आंख तो नहीं देख सकती, मेरा शऊर इदराक इदराक उस तक पहुंच ही नहीं सकता। ये मजमू की कदरदानी, इन मजमू में अपने आप को शामिल करना और इन मजमू के अंदर अपने आप को मिटा देना। किसी का बाजू लग रहा, किसी की टांग लग रही, किसी का क्या। मैं एक जगह था, जगह थोड़ी थी, बंदे ज्यादा थे, सोया हुआ था। मेरे साथ एक साहब थे, वो खुराटे लेते थे बहुत ज्यादा। खुराटे लेके ना, उनका खुराटा, पहले खुराटे लेते फिर एक खुराटा फंस जाता था। फंसने के बाद ठो करके ऐसे दोनों हाथ मारते थे, एक हाथ इधर मारते थे, एक हाथ इधर मारते थे, तो यूं करके फिर सो जाते थे। और जो इधर वाले का हशर होता था और जो इधर वाले का हशर होता था, ये मेरे साथ बीती है, मेरे साथ बीती है ये। वो बेचारे की, बाज लोग ऐसे होते हैं, उनकी नींद जो है वो एक दफा खुल जाए फिर बाद में मुश्किल से आती है। सुबह उठ के कहने लगे, खुराटे होते हैं थोड़े से, ज्यादा नहीं होते, तकलीफ तो नहीं है। मैं कहना एक बार मेरे साथ ना कुछ पठान थे, एक सफर में पश्तो में बात करते थे, पश्तो में बात करते थे ना, मैंने 2-3 लफ्ज सीख लिए। खा खा था, बड़ा ठीक था। वो कहने लगे, देखो इसको अल्लाह की रहमत की मर्तबा देखो, इसको पश्तो आ गई है। खुश हुए बड़े, कहने लगे ये अल्लाह की नकद मदद है। 10 सड़े पंजाबियान दे था, तो पंजाबियान सड़े के देखा ना, तो पख्तों से खबर आकेगी आओ का ना। अल्लाह अकबर, वाह मौला वाह, तेरी मदद नकद आ गई है। नकद हो, सवाद हो, उधार हो, फसाद हो। इस मजमे में कितने अब्दुल्ला बैठे हैं? इस मजमे में कितने अब्दुल्ला बैठे, हमें खबर नहीं। जिनकी वजह से, देख लेना, गौर सुनना, ये मिंबर पे बैठा हुआ जिनको लोग शेखुल वज़ाइफ कहते हैं, उस अब्दुल्ला की वजह से इसको भी नूर मार्फत मिल जाएगा। कभी एक वक्त आएगा, नूर मोहब्बत मिल जाएगा, एक वक्त आएगा, और नूर विलायत मिल जाएगा, एक वक्त आएगा। ये ऐसे इखलास वाला मजमा है। कौन अब्दुल्ला इस मजमे में बैठा है? कौन अब्दुल्ला इस मजमे में बैठा है जिसके कदम मुतलाशी, जिसकी सांसें मुतलाशी, जिसकी नजरें मुतलाशी, जो डर डर के चलता है, जो कांप कांप के उठता है, जो अल्लाह का नाम लेने आया है, जो अल्लाह की मोहब्बत को दिल में सजाने आया है, जो नूर मुस्तफा, जो चौकट मुस्तफा से फैज पाने आया है। कितने इसमें अब्दुल्ला बैठे हैं? सोचे तो सही। हाँ, एक दौर ऐसा था, ये महाफिल सजती थी, ये मजालिस सजती थी, ये नूर की महफिलें सजती थी। लोग दूर दूर से दुर्वेशों के यहां अल्लाह अल्लाह सीखने आते थे। पूरे बर्रे सगीर में एक हस्ती को एहसास हासिल है, गौर से सुनिएगा, इल्म की बात कर रहा हूं। पूरे बर्रे सगीर में, हजारों मील में एक एजाज हासिल है, वह है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हदीस उनके जरिए से बर्रे सगीर में आई है। दिल्ली से आते थे और लाहौर से दूर पैदल चलते थे, घोड़े की लगाम पकड़ते थे, और मुर्शिद शाबुल मुआली रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ मजार है लाहौर में, उनके यहाँ रमजान गुजारने आते थे। आलिम थे, मुर्शिद आलिम नहीं थे, सूफी फकीर थे, आलिम थे, मुहद्दिस थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह यूं चुप करके सर झुका के पूरा रमजान बर्तन धोना, खिदमत करना, सफाई करना, चटाइयां उठाना और फुकरा का पखाना उठा के बाहर फेंक के आना, ये सारी खिदमत करते रहते थे पूरा रमजान, पूरा रमजान। किसी ने पूछा,
इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े फकीह हैं, इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े वक्त के बाकमाल हस्ती हैं, और इतना मिट के चलना। कहा, मुझे एक दफा मेरे मुर्शिद ने सिर्फ एक लफ्ज फरमाया था, अब्दुल हक, दिल्ली से आता है रमजान गुजारने, यहां हमारे पास फकीर बन के आना, अमीर बन के ना आना। एक दूसरा, यहां कोई ऐसे फकीर तुझसे भी बड़े क्या पता मौजूद हों जिनकी वजह से तू कबूल हो जाए और मैं कबूल हो जाऊं, लिहाजा इन फकीरों की खिदमत करना। कहा, बस ये चंद बोल थे मेरी जिंदगी में नक्श हो गए, ये चंद बोल थे मेरी जिंदगी में नक्श हो गए, ये चंद बोल थे मेरी जिंदगी में नक्श हो गए कि फकीर बन के आना, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। बड़ा बन के ना आना अपने मुर्शिद खाने में, तुझे दुनिया में बड़े मनसब मिले हुए हैं, बड़े मकाम मिले हुए हैं, फकीर बन के आना, फकीर बन के आना। इस मजमे में कितने लोग ऐसे हैं, और शेख अब्दुल हक जैसी हस्तियां इस मजमे की खिदमत करती थी। दिल्ली छोड़ के, लोगों के मजमे छोड़ के अपने मुर्शिद के यहां लाहौर में आते थे और आके पूरा रमजान यहां गुजारते थे, पूरा रमजान यहां गुजारते थे, पूरा रमजान यहां गुजारते थे। इस मजमे की कदरदानी। उस दिन बंदे ने क्या किया, मेरी जूती उठाई, जूतियां पड़ी, किसी को उधर फेंका, किसी को उधर फेंका। मैंने कहा, मेरी जूती अरसिया ही है, ये फर्शों की जूती है, तूने अल्लाह के मेहमानों की जूतियां जो हैं उनकी बेकरामी की है। हाँ, एक दफा एक दुर्वेश ने खिदमत की, एक दुर्वेश की खिदमत की, बहुत अरसा खिदमत करता रहा, तो हजरत ने देखा वो जूतियां ही लहदा करके रख देता था। पहचान गए, समझ गए, उनको खिदमत से हटा दिया, समझ गए। जहन्नमियों की जूतियां इलादा करके रख देता था, जन्नतियों की इलादा करके रख देता था। उसको यह कश्फ गालिब हो गया था। शेख समझ गए, उसको उस खिदमत से सारा हटा दिया और ऐसी खिदमत में लगाए जहां सारा कश्फ खत्म हो गया। जहन्नमियों की जूतियां इलादा और जन्नतियों की जूतियां इलादा करके रख देता था। साहिबे नजर गुरोश ने देखा, यह क्या किया इसने, आम बंदे को खबर नहीं होती थी, आम बंदा समझता जूतियां सीधा कर रहा है, बड़ा आजिज आदमी है। उसका कश्फ गालिब था, वो जहन्नमियों को पहचान जाता था, वो जन्नतियों को पहचान जानता था। कितने इसमें ऐसे हैं जिनकी जूतियां बोलती हैं ये जन्नती हैं। बाज़ औक़ात बहुत जूतियां होती हैं, जगह नहीं होती, मेरी कोशिश होती है किसी की जूती पे पाँव ना आए, को बाज़ औक़ात मजबूरन पाँव आ जाता है, क्या पता उसका अल्लाह के यहां क्या मकाम है, उसकी बारगाह में उसका क्या मर्तबा है, उसकी बारगाह में उसका क्या रुतबा है। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी हसास बातें हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। छोटे छोटे जिंदगी के मामले होते हैं, रब कबूलियत की, बरकत की दरवाजे खोल देता है। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली से जानवर इंसान मरने लगे, हर तरफ खुश्क, सब्जा खुश्क, हर चीज खत्म हो गई। नमाज इस्तिस्का 3 दिन पढ़ी और नमाज इस्तिस्का के बाद भी बारिश नहीं हुई। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस तेली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, हजरत खुश्क साली बारिश नहीं हो रही, फरमाया दिल्ली की तवाइफों के पास जाओ, बाबों को, बूढ़ों को भेजा और उनसे कहो दुआ मांगे। अब लोग हैरान, पर कलंदर चे गोयत हक गोयत, फकीर की बात समझ आए ना आए, लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, इमी सजन वाह वाह, ते उम्मी सजन वाह वाह। बाबे बूढ़े जमा हुए, दिल्ली की बूढ़ी तवाइफों के पास गए और जाके पैगाम दिया। हजरत फरमाते हैं कि बारिश के लिए दुआ फरमाएं। उनमें से कुछ तवाइफें कहीं समझ गए हमारी वजह से बारिशें रुकी हुई हैं। कहा अच्छा ठीक है, नहाई, कपड़े उधार लिए, हमारे तो कपड़े भी पता नहीं किस माल के हैं, उधार कपड़े लिए, रोती धोती जंगल में गई और जंगल में जाके जो रोई, जो काम बड़े ना कर सके वो तवाइफों ने करवा दिए। कहा हम समझ गए, हमारी वजह से बारिशें रुकी हुई हैं, हम तौबा करती हैं, हम इस्तिग़फ़ार करती हैं, हम अल्लाह से मांगती हैं। कौन बंदा इसमें कैसा है? मजमा जमा था, लोग खड़े थे और खड़े होके दुआएं मांग रहे हैं, सख्त धूप और गर्मी में
सख्त धूप और गर्मी में लोग खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं। एक जवान परदेसी और चादर में ओढ़ी हुई बूढ़ी मां ऊंटनी पे बैठी हुई ऊंटनी की लगाम पकड़ के जा रहा। पूछा, ये सब क्या है, क्यों रो रहे हैं? कहा, बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली है, हर चीज खत्म हो गई, जमीन का नीचे का पानी भी खुश्क हो गया, बंदे मर रहे हैं। कहा, बारिश तो कोई मसला ही नहीं है, अभी हो जाएगी। देखा कैसी बातें करता है तुम। गया, अम्मा की ऊँटनी खड़ी करके ना एक तरफ, ये बात पूछने आया था। अम्मा का नीचे दामन लटका वो पकड़ के कहने लगा, मेरा मौला, मेरी मां जवानी में बेवा हो गई थी, इसने सिसकती जवानी गुजारी इस्मत और हया के साथ, और उस इस्मत और हया का वास्ता है, बारिश दे दे, बारिश दे दे। बस यही गिड़गिड़ा के मांगा। जाग रहे। वाकई एक बंदा रोज इधर बैठ के सोता है और मुझे परेशान करता है। अगली सीट पे बाज बंदों को नहीं सोने देते, जो कच्चे ड्राइवर होते हैं, वो कहते हैं चुप कर, उठाओ इसको। और जो पक्का ड्राइवर होते हैं वो सारे सो रहे होते हैं, मैं कच्चा आदमी हूं। मां का वसीला मांगा, मां का वसीला मांगा, मां का वसीला मांगा। और अभी मां का वसीला मांग के दामन छोड़ के सफर में तेजी से चल पड़ा। उसे पता है कि बारिश होगी, यूं निकला नहीं, यूं बारिश हुई है। 8 दिन तक बारिश थमी नहीं। कौन ऐसा है, कौन ऐसी अल्लाह की बंदी बैठी है जिसके दामन में उसकी रहमतें वाबस्ता हैं, जिसके दामन के साथ उसकी अताएं वाबस्ता हैं, जिसके दामन का वास्ता दे, जिसके दामन का वसीला दे, अल्लाह पाक की रहमतें, उसकी अताएं, उसकी शफकतें यूं उतरती हैं और यूं बारिश उतरती है और यूं रहमतें आ जाती हैं। इस मजमे में कौन बैठा है ऐसा, कौन बैठा है ऐसा, मुझे तो पता नहीं। उसकी बारगाह में किसका मकाम है, उसकी बारगाह में किसका मर्तबा है, उसकी बारगाह में किसका मनसब है, मनसब है। हजरत ख्वाजा उस्मान दामानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, वाह 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 वाह, काम बन गया, काम बन गया, काम बन गया। क्या हुआ हजरत? उन्होंने कहा, बस वो पानी का लोटा भर के लाया था, एक जगह जरा जगह सख्त थी, एक फकीर वहां वुजू करके गया, मैंने कहा मैं भी वहां वुजू कर लूं, मैंने कहा मैं भी वहां वुजू कर लूं। और मैं जो वुजू करके वहां आया, वो वुजू का ऐसा नूर छोड़ के आया था, उसके वुजू का नूर जो मुझे मिला, सारे लताइफ तय हो गए, सारे दिल की मंजिलें तय हो गई, सारी विलायत की सीढ़ियां तय हो गई। काम बन गया, काम बन गया, काम बन गया। चल भाई, काम बन गया, काम बन गया। किसकी प्लेट के साथ मैंने खाया, उसके जूठे से मेरा काम बन गया। कौन वुजू करके आया था, मैं वहां वुजू किया, मेरा काम बन गया, काम बन गया। एक दरवेश थे, मैं सामने बैठा, उनकी जायनमाज बिछी हुई थी, जुमे का वक्त था, लोग जायनमाज पे, दरवाजे के साथ जगह थी, जायनमाज पे पांव देके वो लोग उस पे पांव देके जा रहे थे। एक दफा, 2 दफा वो चुप करके बैठे हुए थे। मैंने ना वो जायनमाज ऐसे लपेट दी, मुझे यूं फरमाया क्या पता किसके कदम की मिट्टी से मेरी बख्शिश हो जाए, फिर सीधा कर दिया। और लोग उसमें पांव देके जा रहे हैं। किसके हुजू से, किसके जूठे से, किसके कदमों से, किसके साथ बैठने से, किसको एहतराम की नजर देखने से, किसको माफ कर देने से उसकी नागवारी पे काम बन जाता है, मंजिलें मिल जाती हैं, मसले हल हो जाते हैं, नाकामियां दूर हो जाती हैं, रूह की मंजिलें तय हो जाती हैं, विलायत के दर्जे तय हो जाते हैं, विलायत के दर्जे तय हो जाते हैं, विलायत के मकामात तय हो जाते हैं। ये मजमे, और फिर वो मजमे जो फर्ज रोजों के लिए आए हों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारी दुनिया रोजे रखने पे आ जाए। गौर से सुनना, जाग रहे हैं, देखो दाएं बाएं, जाग रहे हैं, सारे बंदे रोजे रखने पे आए, नफली रोजे, एक फर्ज रोजे के मकाम को नहीं पहुंच सकते। आप फर्ज रोजे रख रहे हैं,
फर्ज रोजे का ये मकाम, फर्ज रोजे का ये मर्तबा और फर्ज रोजे की ये अजमत है जो अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने आपको दी है। और वो मजमा जो फर्ज रोजों के लिए जमा हुआ है और उम्मत के उस दौर में जब फराइज ज़बह हो रहे हों और 5% लोग रोजे रख रहे हों, जब फर्ज खत्म हो रहे हों और उम्मत का वो तबका जो फर्ज के लिए जमा होगा, फरमाया उनको 70 बदरी सहाबा का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में 10 एक बदरी सहाबा का सवाब वो पाएंगे जो सिर्फ उन लोग, ये सुन्नत पे है, ये अजर सुन्नत पे है, और जो फराइज पे है वो तो पूछे ना। जो हदीस में नहीं आता जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा, एक सुन्नत। और जो फर्ज को पूरा करेगा, जो फर्ज को जिंदा करेगा, सोचें तो सही, जो फर्ज को जिंदा करेगा, जो फर्ज को जिंदा करेगा, उसका क्या मकाम होगा, उसका क्या मर्तबा होगा, जो फर्ज को जिंदा करेगा और जो उसके लिए जमा होगा और जिसका मतलब वही होगा। ये मुबारक मजमा है, ये सादतमंद मजमा है जिसमें दुआएं कबूल, जिसमें आहें कबूल, जिसमें फरियादें कबूल, जिसमें दर्द खत्म, जिसमें गम खत्म, जिसमें नाकामियां खत्म, जिसमें जादू जिन्नात बंदिशों का तोड़, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत, इश्क मुस्तफ़ा, मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बतें, असहाब मोहम्मद की निस्बतें, ये वो मुबारक मजमा है जिस मजमे की सादतें मेरे अल्लाह ने मुझे आपको दे दी हैं। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो पूरी दुनिया में इस मजमे के साथ निस्बतों के साथ जुड़े हुए हैं। इस मजमे में कौन अब्दुल्ला है, कौन ऐसा है जिसके वजू से काम बन जाए, कौन ऐसा है जिसको देखें काम बन जाए, कौन ऐसा है जिसके खिलाने से जन्नती होगा ना। हदीस में आता है एक बंदा सफों में खड़ा जहन्नमियों में खड़ा होगा, जरा गौर से सुनना, जहन्नमियों में खड़ा होगा, एक जन्नती जा रहा होगा, कहेगा तुझे पता है, याद है मैंने तस्बीह खाने में सेहरी के वक्त तुझे लुकमा खिलाया था, तुझे घोंट पानी पिलाया था। यह तस्बीह खाना और सेहरी का अल्फाज मेरी तरफ से इजाफा है। हदीस में आता है तुझे मैंने लुकमा खिलाया था, तुझे मैंने खाना खिलाया था, तुझे मैंने खिदमत की थी, याद है? कहाँ याद है? कहाँ पकड़ा हुआ हूं अपनी खताओं की वजह से। तू तो जन्नती है और जन्नती की सिफारिश कबूल होती है, अल्लाह से मेरी सिफारिश तो कर दे। वो सिफारिश करेगा, इसको साथ जन्नत में लेके जाएगा। इसलिए कहता हूं सुबह सहरी के वक्त अपनी खिदमत को ऊपर बढ़ाओ। सहरी के वक्त खिदमत करने वाले कम होते हैं, और याद रखना वही लम्हा होता है सहरी का जिस वक्त नूर का वक्त, हुजूर का वक्त, विलायत का वक्त, अताओं का वक्त और अल्लाह से मिलने का और हैरत अंगेज कायनात का वक्त, वो सहरी का वक्त है, वो सहरी का वक्त है। और उसी वक्त अक्सर खिदमत वाले कम होते हैं, ऊपर बर्तन उठाने, रखने, पिलाने, खिलाने वाले कम होते हैं, और वही वक्त सबसे ज्यादा लुटने का वक्त है, कायनात के निजाम से पाने का वक्त है। खुशकिस्मत होंगे जो उस वक्त की कदर करेंगे। इस मजमे की कदर कर लें। इस मजमे में आए हैं तो इस पे शुक्र गुजारी हो। हर बंदा के अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे कदम तस्बीह खाने में उठे, तेरा एहसान है। ये कदम दुनिया में और कहां कहां उठते रहे, मौला तूने पर्दे रखे हुए हैं, आज ये तेरे मेरे कदम इस खैर की तरफ उठ गए हैं, इस बरकत की तरफ उठ गए हैं। अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह तेरा करम है। इस पे जितना एहसान मंदी का जज्बा हो, जितने शुक्र गुजारी का जज्बा हो, जितना जज्बा एहसान मंदी और शुक्र गुजारी का होगा, उतना उसकी रहमत मुतवज्जे, उसका फजल मुतवज्जे, और इंशाअल्लाह झोलियां भरी बरकतें पाई और अल्लाह के खजानों में इंशाअल्लाह खुश खुश हंसते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और दुनिया में भी अल्लाह फक्र, फाके, गुर्बत, बीमारियां, दुखों, तकलीफों, नाकामियों और परेशानियों से अल्लाह पाक बचाएगा, दुनिया में भी इंशाअल्लाह। खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है। कोई दामन पकड़ा ऐसा जिसकी वजह से काम बन जाए। मैं खिदमत वालों को देखता हूं, आज यहां खिदमत वाला बैठा गपशप कर रहा था, मैंने कहा उठ जा, काम की लिस्ट बना, तेरे मुकद्दर संवर जाए, तेरे नसीब संवर जाए, तेरे मुकद्दर संवर जाए, तेरे नसीब संवर जाए। इस मजमे की खिदमत, इसमें कितने अब्दुल्ला होंगे? इस मजमे की खिदमत जिसमें कितने ऐसे होंगे जिनके देखने से काम बन जाए? इस मजमे की खिदमत जिसके वुजू के बाद वुजू करने से मसले हल हो जाए?
और विलायत के मकामात तय हो जाए इस मजमे की खिदमत। कितने खुशकिस्मत है जो खिदमत कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों की, कितने नसीबों वाले हैं जो खिदमत कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों की। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह इस मजमे से कभी महरूम ना करना, इस मजमे से कभी दूर ना करना, महरूम ना करना, कभी दूर ना करना। अल्लाह पाक जल्ल शानहू बाज़ औक़ात अपनी रहमत के करिश्मे दिखा देते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं आपको। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो बढ़ना है और 12 तस्बीह सुबह शाम जज्बे के साथ, पूरे वलवले के साथ, पूरे गुमान और यकीन के साथ और डूब के पढ़ रहे हैं। ये 12 दिन का अमल है, उसके बाद 12 दिन के अमल में के बाद इसकी बाकायदा दुआ होगी अलविदाई, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, पूरे जज्बे के साथ, पूरे दिल की कैफियतों के साथ, पूरे वलवले के साथ, पूरे दर्द के साथ और पूरे यकीन के साथ और डूब के पढ़ना। मेरा मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का यकीन के साथ तसव्वुर, हिफाजत, किफायत, किफालत, मदद, बरकत, रहमत का, तो उससे नफा ज्यादा होता है। दीवार पे जिस जोर से गेंद को मारेंगे उसी जोर से वापस आती है। ये अमल मुसलसल तवज्जो से करेंगे और ध्यान से करेंगे। आए हम आज हरूफ तहज्जी का नक्श है, हरूफ तहज्जी का नक्श है और आज जुमेरात है, शब जुमा है। दरूद शिफा भी हमने पढ़ना है, जिस दरूद शिफा के अंदर सारी बीमारियों, मुश्किलों, परेशानियों का हल है। वो दरूद शिफा जिसके जरिए से कायनात को राहत, रहमत, बरकत, आफियत मिलती है। आओ आए वो दरूद शिफा मेरे साथ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। तो आज का हर्फ जो है, हमारा आज का जो हर्फ है वो शीन है? और ये कुरान पाक में ये 2489 मर्तबा आया है। इसको पढ़ते हुए अपनी हाजतें, अपनी मुरादें, अपने दिल की आसें इस नक्श में लिखें और फिर इस नक्श को इलाहा करके मटके में डाल देंगे और पूरी दुनिया वाले किसी पानी में, दरिया, समंदर में, आटे में डाल देंगे। लिखना शुरू करें शीन के पढ़ते हुए दिल ही दिल में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। कशकोल और तवंगरी कशकोल का अमल है। गुठलियां वो हैं जिसपे लाखों करोड़ों दरूद, जिक्र, तस्बीह, इखलास, आमाल साल साल से पढ़े जाते हैं और पढ़े जा रहे हैं। ये वो गुठलियां हैं। कभी गुठलियां घर ना ले जाइएगा, एक गुठली भी ना ले जाएं। बाएं हाथ पे कटोरा रखेंगे और सिर्फ 45 बार पढ़ेंगे, या कादिरो या नाफियो। ये वो लफ्ज है जिसको पढ़ने से बरकतें, रहमतें मिलती हैं और इसके 45 बार पढ़ने से नाकामियां खत्म होती हैं, रहमत और बरकत के फैसले होते हैं, गैब से काम बनते हैं, गैब से काम बनते हैं, गैब से काम बनते हैं। और उसके बाद फिर इन गुठलियों को हाथ लगा के, बरकत वाली गुठलियों को पूरे बदन पे फेर देना है। आए पढ़ना शुरू करें 45 बार, या कादिरो या नाफियो।
روز ایک عمل ہوتا ہے جس میں اللہم بسم کا کہف کتمیر پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کے اور حدیث کے وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے زندگی میں اگر دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو جنات اثرات نظر بد ہیں، یا کوئی زنجیر اور بندشیں ہیں پریشانیوں مشکلات کی، یہ ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہیں. اس کو مجرمانہ حاضری، مجرم کی شکل میں حاضری دے کے اللہ کے سامنے، مجرم بن کے جو اللہ کے سامنے اس کو پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس مجرم کی اس حاضری کو قبول فرما کے اسے مجرموں میں نہیں، ممتاز اليوم ایہل ممتاز اليوم، اللہ پاک کہے گا آج مجرم علیحدہ ہو جائیں. کہتا مولا ساری عمر مجرم بن بن کے آیا تھا اور تجھے منا کے آیا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، یہ مجرم نہیں ہے، یہ ہمارے دوستوں کی لسٹ میں ہے، ادھر کر دو. ممتاز اليوم ایہا المجرمون، قیامت کے دن چھانٹی ہو گئی، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اور صفت رحیم ہوگی اور جلالی جلال ہوگا. جو آج کہتا ہے مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی کریم نہیں، تیرے نام کو لے رہا ہوں تو معاف بھی کر دے اور میرے کام بھی بنا دے، تو اس کے سارے جادو جنات اثرات بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. میرے ساتھ پڑھیں، مجرمانہ حاضری ہے. اللہم بسم کا کہف کتمیر، سر جھکا کے توجہ سے دھیان سے کیفیتوں سے پڑھیں. اللہم بسم کا کہف کتمیر، 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 اللہم بسم کا کہف. آمین. جتنے بھی اعمال ہیں نفلی اعمال پڑھا کریں، مرحومین کو اس کا ثواب ضرور دیا کریں. مرحومین کو ثواب، اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں، ان کو ہدیہ بھی دیا کریں. انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے. جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات تلاوت، نماز جماعت کا بہت اہتمام ہو، اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر ہو. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. درس رابطہ ہے، آتے رہیں، اپنے مقام پہ سنتے رہیں، یہ بھی رابطہ ہے. میں بھی یاد دہانی، آپ بھی یاد دہانی کا محتاج ہیں. اور آج 13 کی رات ہے. 13، 14 اور 15 یہ وہ راتیں ہیں جس میں سورۃ فاتحہ کا ایک عمل ہے. اور میں اکثر دیتا ہوں ننگے سر ننگے آسمان میں رات کو جتنی دیر پڑھ سکیں، پوری رات بھی جتنی دیر پڑھ سکیں، ننگے سر ننگے آسمان سورۃ فاتحہ. یہ عموماً ایام 20 کا عمل ہے. یہ نفلی روزوں میں ہوتا ہے، تو فرض روزے ہوں اور یہ عمل ہو جائے. 40 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 1100 بار پڑھ لیں. الحمدللہ میں نے 3300 دفعہ یہ عموماً پڑھی ہے، اور سال ہر سال پڑھی ہے. 3300 دفعہ عموماً پڑھی ہے، اور بعض اوقات 5000 دفعہ پڑھی ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے
बहुत साल पढ़ी है। तो ये अय्याम 20 का अमल है, जितनी दफा पढ़ लें, जितनी आपको सहूलत हो और जितना बहुत ज्यादा हो। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी हो, बहुत ज्यादा इसकी ताकत है। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी हो, इसका बहुत ज्यादा। कल जुमा है तो जुमे के अमाल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, इसका अमल लिखना है, इसका कार्ड लिखना है। दरूद पाक या वहाबों का अमल है। और मर्द हजरात की तबरुकात की ज़ियारत और मस्तूरात की जो है वो 3 बजे तबरुकात की ज़ियारत होगी। और असर की नमाज के बाद 80 बार दरूद पाक पढ़ा करें। मुझे कई लोगों ने कहा अम्मा ख्वाब में आई, अब्बा ख्वाब में आया, बीवी कोई फला, कि 80 दफा जो दरूद पाक असर की नमाज के बाद पढ़ा था, अल्लाह ने उसकी वजह से बख्शिश कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ये दरूद पाक जो है मुस्तकिल इंशाअल्लाह खवातीन जो है उसकी जो तबरुकात की ज़ियारत होगी वो 3 बजे होगी। खवातीन की तबरुकात इतवार के दिन, हाँ इतवार के दिन, जज़ाकल्लाह, इतवार के दिन जो है वो होगी। कल 14 मार्च जुमा, चांद गिरहन, उसका कागज आपको मिल गया है चांद गिरहन का, इस्तकबालिया पर मौजूद है, उसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। और चांद गिरहन का आगाज सुबह 8:57 से और दोपहर 3 बजे तक होगा। 3 बजे तक उसके बहुत ज्यादा अमल है। उसमें मोमबत्ती वाला अमल न कीजिएगा, उस पर क्रॉस लगाया हुआ है, मोमबत्ती वाला अमल न कीजिएगा। बाकी जितने अमल कर लें इंशाअल्लाह ताला। 17 रमजान को अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा का अमल है। और 5 इलाचियों वाला नक्श सब्ज कागज में दिया जाता है। वो उस पर नक्श लिखा हुआ होता है, हाँ नक्श लिखा हुआ होता है। वो बहुत ताकतवर नक्श है और बहुत जबरदस्त नक्श है, बरकत और रिस्क के लिए, बरकत और रिस्क के लिए। और तस्बीह खाने में जमजम के जो कूलर हैं इनके शानदार पैकेज हैं, इसका पानी पिया करें। और हमारी जो ये तलिस्मात वाले अमल हैं उनको किया करें, उससे बहुत मसले हल होते हैं। अबकरी चैनल जिसका नाम है इंग्लिश अबकरी, उसको खुद भी सब्सक्राइब कराएं। दुनिया में कितने बेशुमार लोग इंग्लिश को समझने वाले हैं, इंग्लिश मैगजीन और इंग्लिश चैनल को बहुत ज्यादा फैलाएं। और हमारे अबकरी इंग्लिश चैनल का नाम है इंग्लिश अबकरी, इंग्लिश अबकरी, तो उसको बहुत ज्यादा फैलाएं, बहुत ज्यादा। रमजान के आखिरी अशरे के बहुत ताकतवर अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहिदात हैं। कल मुशाहिदात बताए थे, अब 27 की रात को मुशाहिदात सामने रख के आपके तजर्बात, मुशाहिदात, किसी नक्श तावीज का कोई तजर्बा, कोई अमल, तो इंशाल्लाह उस पे अमल होगा। इसी तरह 27 रमजान को निकाहों की तरतीब भी है, निकाहों की। अब औकात जरा मुख्तसर हो गए हैं। सहरी का दस्तरखान 4 बजे समेट दिया जाएगा। बाहर का मजमा बढ़ रहा है, तो मकामी आप हजरात जो यहाँ हैं पहले तशरीफ ले जाया करें, पहले तशरीफ ले जाया करें, पहले ही बहुत ज्यादा तवज्जो करें। अबकरी रूहानी कार्टून बनाने का सिलसिला जो हजरात बनाना चाहते हैं, टेलीनार के नंबर पे राब्ता, और जो बना रहे हैं वो अपनी तवज्जोहात बहुत ज्यादा बढ़ाएं। आए बैठ के फिर अल्लाह से मांगते हैं। क्या पढ़ेंगे पहले गौर से सुन ले, गौर से सुन ले। देखें शब जुमा है, पहले गौर से सुन ले। शब जुमा है, जिसको विलायत मिली है शब जुमा में मिली है, जिसको तमंगरी मिली है शब जुमा में मिली है, जिसको खुशहाली मिली है शब जुमा में मिली है, और जिसके लिए दौलत, बेटे, इज्जत, रिस्क के फैसले हुए शब जुमा में हुए हैं, वो तो शहनशाह है, वो तो शहनशाह है। हर शब कदर अस्त, अगर कदर बदानी, अगर कदर है तो फिर हर रात शब कदर है। गौर से सुनना, अगर कदर है तो हर रात शब कदर है। शब जुमा परदेशियों का मजमा। मैंने वाकया नहीं सुनाया था कि हजरत मुश्किलों ने, बर्बादियों ने मुझे घेर लिया, कहा 40 परदेसी जमा कर, उनसे दुआ करा, मसले हल हो जाएंगे। यहां तो कितने 40 बैठे हुए हैं। फिर या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, और जिनको ये नहीं आता वो सिर्फ या बदियो पढ़ेंगे, या बदियो पढ़ेंगे। और याद कर लें तो अच्छी बात है, एक पल में याद हो जाता है। कल से अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। अगर लग जाए, कितने माशाल्लाह होंगे जिनको याद हो गया होगा। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, ये वो है, सिर्फ 1200 दफा पढ़ ले काम बन जाता है। और इस वजीफे की तासीर, इस वजीफे की ताकत
मैंने कहा ना कि 7 समंदर नीचे कोई बंदा है तो अल्लाह उसके पास सोने चांदी की कश्ती भेजे, उसको बिठाए, किनारे पे आए, सोने चांदी का निजाम हो, सोने चांदी के महल्लात हो, और ये इस वजीफे की एक अदना सी ताकत है। और फिर इज्तिमाई बैठ के कोई अब्दुल्ला बैठा होगा, हाँ कोई ऐसा बैठा होगा जो बस ऐसे पढ़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरा अल्लाह कहेगा सारे मजमे की, और जो पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ इस वक्त बैठा है, और उस सारे मजमे की सुन लो, और इनकी मुसीबतें परेशानियां टाल दो, इनकी नाकामियां खत्म कर दो। आओ फिर बैठ के गिड़गिड़ाते हैं, भिखारी बनते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। एक है वजीफा पढ़ना, एक है मांगना दिल के साथ होता है। जब दिल भी साथ शामिल हो, जब मन भी साथ शामिल हो, जब जज्बे भी साथ शामिल हो, जज्बे भी साथ शामिल हो, दिल की कैफियतें भी साथ शामिल हो, अंदर दर्द हो, अंदर सोज हो, अंदर गम हो, इस गम के साथ ये वजीफा वो है जो मुस्तनद किताबों से साबित है, बड़ी बड़ी हस्तियों से साबित है। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, ये मजमा बैठ के पढ़े, शबे जुमा हो, दर्द की कैफियतें हो, गम की कैफियतें हो, रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं, अताएं मुतवज्जे हो जाती हैं, उसका फजल मुतवज्जे हो जाता है। आए फिर ज्यादा देर न करें और फिर बैठ के इसको पढ़ें और दर्द की कैफियतों से पढ़ें। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब या बदी या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब या बदी अल अजाइब। अल्लाह अल्लाह मौला या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो
یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ
آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم. يا اكرم من كل كريم، يا اعظم من كل عظيم، اغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبة. انت الله على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا سلام. الله حافظي، الله حاضري، الله ناظري، الله شاهدي، الله ناصري، الله معي، الله لي، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس عطا کر دے اور رحمت کر دے اور خزانوں سے دے دے. کبھی منگتا نہ رکھ، کبھی محتاج نہ رکھ. در در کا بھکاری ہونے سے بچا، در در کا منگتا ہونے سے بچا. اس در کو آباد کر دے اور شاد کر دے. فتنوں سے نجات دے دے، فتنوں سے بچا دے. اہل لوگوں کو متوجہ کر دے، وسعت برکت کے دروازے کھول دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.